Hello, everybody. I officially welcome you all. And before I start, I request all the participants to please keep your video and audio turned off so that we can maintain the decorum of this webinar. I just want to make sure that my audio and video is I'm audible and visible. Can someone please confirm if I'm audible and visible? Okay. So, hello everybody. I welcome you all to the first webinar that is being organized by UHO, or that is the acronym for United Health Organization. Okay, I have complaints of voice problem. Okay. Okay. So I believe majority of the people do have the audio and do not have the audio and video issues. And those who do, there might be problems with your connection. So please check it at your end and then let us know. Let us just continue with what I was saying. So I was basically telling you that what is UHO all about. So United Health Organization is an association where we recognize this very idea that, okay, medicine is a very vast field, because we have people from different backgrounds gaining different knowledge in different fields. So here we have people doing their MBBS, we have physiotherapists, we have people doing their achieving their doctorate of pharmacy, we have people that are homeo students, and the purpose behind forming this organization is to unite all of these students and these graduates who belong to their different fields, but what's the uniting factor is medicine and the interest and the will to gain knowledge in medicine. And that is why we have established this platform so that everybody can unite here and gain advantage of those opportunities, may it be attending seminars or webinars, or helping others through your knowledge as well, or raise any relevant issues that anyone from any particular field is facing with regard to their profession. So that is the main purpose of forming this organization, that is to cater to everybody without any bias or discrimination. With that said, I would like to move on. We have this first webinar that is being organized by UHO, and I thank everybody in the audience for joining us, taking out time today. Despite all the mishaps, we know that Karachi is in a very troubled situation. The rains have ravaged the city. There's havoc, there's chaos everywhere. But despite of these problems, I'm really thankful to all for taking time out and joining us in this session. I also would like to tell the audience that if you have any questions throughout the session or any comments or any queries, feel free to do so. Type them out in the chat box. I will make sure to check the chat box again and again. And any questions or queries you have, please refer to it in the chat box and I'll take it from there. Now, moving on towards the topic and the guest we have today. The guest we have today is Professor Sikandar Sherwani, and he has various accolades under his belt. He is currently teaching at a Federal Urdu University. He is a medical microbiologist, and he has a very rich background in research. He has around 200 publications, research publications. He has had presented his work at a national as well as international level. And if I talk about all of these achievements that he has, 1 hour would just be spent on talking about these achievements. So moving on, it is a pleasure to have you with us, sir, and thank you for spending your time with us and trying to benefit others with your knowledge. Thank you so much for joining us here. Now, without any further ado, I would like to move on towards the topic. And I also advise people in the audience to please ask questions that are relevant to the topic right now that we are discussing, so that we do not have any spam in the chat box and it's easier to refer to the questions. So the topic we have today is, all of you who have seen the poster know it, that is spread of infectious diseases in the monsoon, or after the monsoon. And we feel the reason behind choosing this topic is because obviously this monsoon season, Karachi is struck by
different spells of rain. We have had moderate showers, we have had heavy showers, and now once these rains are over or will be in a month or so, we know what's going to come next, and that is the spread of those infectious diseases. So with that said, the first question that I would like to ask Professor Sikandar is that for everybody here in the audience, just to clarify, what exactly are those infectious diseases? What diseases what is the criteria for a disease to be termed as in the category of an infectious disease? Sir, you have been muted. You need to unmute yourself in order to be audible. No, you're not audible. We have the mute sign. Yes, Can you now hear you're it now? audible. Yes, Okay. yes. Thank you so much, Mariam, for such a wonderful introduction of mine. I always say that I'm a very humble person. I love microbiology subject. And secondly, I would like to congratulate WHO, for organizing such a diverse medical forum. People from all over the backgrounds, they have joined you people, and whatever their background is, the nursing and paramedical staff or homeopathic or allopathic, and I love it. We really need such a platform where all are united together to share their experiences. I myself is a researcher, medical microbiologist. My area is infectious diseases. You have already introduced it, and today's topic is you are absolutely right, is a need of the time, and due to the mishap, it has rescheduled again today, and I think it's much good for all the audience. And I would try to keep it as much as non-technical and non-math, so that people can understand it fully from different backgrounds. You know that I always say to my students that uh, microorganisms are the creatures which can never be seen by the naked eyes. They are all around us. They could be bad, they could be good for us, but those who are bad can cause serious infections, not only to plants, not only to animals, but also to human beings. Since we cannot see them, so we don't know that which thing is going to harm us. However, I can bet that despite of the fact that I have washed my hands, but I can bet that there are hundreds and hundreds of microorganisms still here. The reason is that because by the time you are going to start the session, I have touched different articles and objects around, and definitely my hands have got contaminated. The same case with the air, the same case with the surroundings that we have. What is happening actually, and I always say that Pakistan, being a part of the third world country, is still fighting against the infectious diseases, unfortunately. And one of the prominent reason behind it is the insanitary conditions we have it. And another main factor is lack of cleanliness habit among the people. And you already know that what really had happened with the infrastructure after the monsoon. The stagnant water is all around, which is a breeding hub of the mosquitoes. We have a dual threat of mosquitoes, Aedes aegypti, Anopheles. We have a threat of the dengue around. We have a threat of, apart from the normal outcome of these infection, this monsoon, every year all around the world has always created havoc to the people, has already created disturbances to the people. We have a huge burden of infectious diseases. Here people die due to diarrhea, here people die due to hepatitis.
But think about that, we usually have the contaminated water that we always drink at our home, plus the water that is stagnant around it is, is going to create more problem. So what we have to do simply, we have to be extra cautious while taking every step. And unfortunately, people take it so easily. People are not aware of the infectious diseases around, despite of the fact that we have a very huge campaign in electronic and the print media. I myself is running an organization that is Medical Microbiology Association of Pakistan, and we have been putting a lot of effort to create awareness among the common people. And Mariam, that this hand is the culprit. This hand is responsible for the transmission of hundreds and hundreds of diseases, and particularly the GIT tract infections. So, I always wondered that being Muslim, we don't consider the cleanliness and hygienic conditions around. Our Prophet, peace be upon him, has been stressing out, the washing hands since 14,000 years ago. And today, the science who has flourished a lot. I myself, when visited USA, I did, particular trainings of hand washing. So sometimes I laughed at what exactly they will tell me about hand washing and why do have very huge, extensive. But then I realized that what maximum microbes can be spread by the hands, and if we don't wash the hands properly, so definitely our hands could be the source of transmission of infection, not only to us, but our the colleagues around, our family members, the one to whom you shake the hands, the one to whom you hand over the things. So we have a very huge spectrum of infectious diseases around, and we have to have, very careful about it. Right. And जैसे कि आपने जो है वो हमारे दीन की बात की, तो हमारे दीन में भी कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, मतलब कि आधा ईमान हमारा जो है वो सफाई है। लेकिन फिर भी आई हैव नोटिस्ड दिस कि हम लोग जो है वो खुद कचरा भी बाहर फेंकते हैं। हमारी ये कहते हैं ना कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उनकी तो गलती है ही कि सेवरेज का निजाम नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन हमारी भी उतनी ही गलती है कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में से लोग जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं। हम लोग खुद अपनी घर की सफाई रखते हैं, लेकिन जो बाहर गली में पानी जा रहा होता है उसको कोई किसी को तौफीक नहीं होती है कि जो है वो उसको उठाए। तो बिल्कुल जितनी गलती हमारे इंस्टीट्यूशंस की है उतनी गलती हमारी भी है। और कोरोना वायरस के बाद तो आई गेस ये बहुत ज्यादा लोगों में अवेयरनेस आ जानी चाहिए। आपके हैंड वॉशिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part. Absolutely. Should be a very important part of your personal hygiene. मैं खुद MBBS की student हूँ। Mariam, we have to have realized the mode of transmission of infection. हमें इसको realize करना है कि infection कहाँ से transmit हो रहा है और कौन सी source से हम catch कर रहे हैं। If the transmission mode is airborne, we have to take precautions accordingly. If the transmission mode is waterborne, we have to take the transmission accordingly. If the and why did I choose this topic while discussing with you and Dr. Zaid Bukhari? The reason is that monsoon is a source. After that, many mode of transmissions are open. You are going to have exciting food outside, you will get infected. You are going to have, the water outside, you will get infected. You are going to inhale the air which is infected from outside, definitely you get in, you catch infection. और हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हम अपने घर को साफ करके कचरा बाहर फेंक के महफूज हो गए। जी नहीं, आप नहीं महफूज हुए। वही तो सोर्स, वही तो कचरा जो आपके घर के बाहर है, वो ब्रीडिंग सोर्स है इन्फेक्शन की। वही ब्रीडिंग सोर्स है इन्फेक्शन को फैलाने की। ये जो क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ये एड्रेस करना है। ये कोई क्वेश्चन मैंने देखा, क्या कोविड-19 टेस्ट जरूरी होगा ब्लड डोनर स्क्रीनिंग में जैसे हेपेटाइटिस? अच्छा, आई गेस द क्वेश्चन इज कि जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमेशा कोई ना कोई टेस्ट करते हैं
सॉरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड की स्क्रीनिंग होती है, तो किसी को ब्लड डोनेट करने से पहले क्या उसमें कोविड का भी टेस्ट होना चाहिए? क्या नहीं उसके थ्रू नहीं नहीं ट्रांसमिशन हो नहीं, सकती उसमें है? नहीं होगा। हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त जो है वो हम लोग वाले टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं विच इज ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड, ठीक है ना। हेपेटाइटिस बी है, सी को देख रहे होते हैं, सिफिलिस को देख रहे होते हैं, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट को देख रहे होते हैं। ये हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि ब्लड से ट्रांसमिट हो रही होती हैं, तो वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन के तौर पे देखी जाएंगी। कोविड का इसके अंदर कंसर्न तो नहीं है, हाँ, लेकिन कोविड क्योंकि एक पेंडेमिक बन चुका है, तो जब भी अब ये होगा कि जब हम बाहर ट्रैवलिंग करने जा रहे होंगे, स्पेशली इन द कमिंग सीजन, वी हैव टू हैव at least report with us that we are COVID negative, क्योंकि it has got a pandemic infection। और हर कंट्री यही चाहता है कि हमारे यहाँ के इन्फेक्शन दूसरी जगह मतलब ट्रांसमिट ना हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल इन दी चैट बॉक्स, और इस सेशन को जितना हो सके इंटरैक्टिव बनाएं, बिकॉज ये सेशन आप लोगों के लिए, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, प्लीज इवन इफ इट्स अ वाइल्ड क्वेश्चन, एनीथिंग दैट इज रेलेवेंट टू द टॉपिक, प्लीज आस्क अस इन दी चैट बॉक्स। अच्छा, अब हम लोग जी बिल्कुल। और अच्छा, अब आप कुछ स्पेसिफिक, जैसे आपने ओवरऑल तो हमने बात कर ली कि इन्फेक्शियस डिजीजेस की एक थ्रेट है, हमने फैक्टर्स भी डिस्कस कर लिए कि जो पानी खड़ा हुआ है बारिश की वजह से, और जो सेवरेज का जो हमारा सिस्टम है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं स्प्रेड ऑफ दीज इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो अगर हम लोग जैसे, और कंसिडरिंग दैट हम वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, तो इसीलिए हमारे इसमें ज्यादा थ्रेट होती है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड नहीं है। तो अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर हम लोग जैसे कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस को आप नेम करके डिस्कस कर लें जिनका हमारे पास सबसे ज्यादा थ्रेट है, जैसे कि डेंगू और HIV, ये सब कुछ। बिल्कुल 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 जी, सबसे ज्यादा जो आपको देखना है वो स्टैग्नेंट वाटर को जमा नहीं होने देना है। हमारा कराची की मैं मिसाल दूं, पूरे सिंध की मिसाल दूं, और बारिशें और जगह भी हो रही होंगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लैकिंग की वजह से पिट्स एंड होल्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर हमारे पौधे होते हैं, क्यारियां होती हैं, उसमें भी पानी जमा हो जाता है। ये जमा हुआ पानी ना एक ब्रीडिंग सोर्स है मस्किटोज की। अभी मैं फोकस करना चाह रहा हूँ डेंगू की तरफ, अभी फोकस करना जा रहे हैं हम लोग मलेरिया की तरफ, ठीक है। और क्या नाम है, सब इन्फेक्शियस डिजीजेस के अलावा आपको ये भी देखना है कि जब आप बहुत ज्यादा इस पानी में रहते हैं, नहाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एक्सर्शन हो जाती है। यू विल फील पेन, यू आर टायर्ड, आपको बुखार होने लग जाता है। तो ये बुखार की दो सोर्सेस होती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिब्राइल इलनेस अलहदा है, यानी बुखार जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के जरिए एक अलहदा कैटेगरी है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस का बुखार जो है वो थकावट की वजह से, बच्चे खेलते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे, मरियम, मैं एक और चीज पे फोकस करने जा रहा हूँ, थोड़ी डायरेक्शन चेंज हो रही है, कि बहुत ज्यादा मेडिकेशंस पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। इफ यू फील इट ओके बाय योरसेल्फ, देखिए अल्लाह ताला ने हमें एक इम्यूनिटी भी दी हुई है। Our immunity is always trying to help us to fight against the infection. हमारी इम्यूनिटी हमें जो है वो मदद दे रही होती है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। Have a good diet, have a good exercise, sleep a lot, try to be happy, don't stress out your body. ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो आपकी बॉडी पे एक सूदिंग, वेरी प्लेजेंट इफेक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगी, जो कि आपको बचा सकेगी। तो अगर आपको बुखार और थकावट जो है ये इन्फेक्शन के अलावा की सोर्स है, तो ये अच्छी तरह आपके सोने से, अच्छी तरह बात करने से जो है वो आपके बच जाएंगी। सफिया का क्वेश्चन आप जहन में रख लीजिएगा, मैं बताता हूँ। जी मैं नोट कर रही हूँ क्वेश्चंस। जी अच्छा, इसके अलावा मैं खास तौर पे फोकस करना चाह रहा था मलेरिया और डेंगू की तरफ, क्योंकि खिड़कियां भी खुली होती हैं हमारे, तो हमें क्या करना है, एक तो फुल स्लीव्स पहने, खिड़कियों को बंद रखें, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आप जो है वो थोड़ा सा बच्चों को खेलने से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस को लेकर आते अच्छा, हैं। डेंगू का कोई, वो एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, डेंगू का कोई टाइम पीरियड होता है कि मतलब इस टाइम पे वो
जो मस्कीटो बाइट है वो मतलब कि इस टाइम पे आपको बाहर नहीं जाना चाहिए कि अभी खतरा होता है, ऐसा कोई टाइम फ्रेम है या फिर आपको पूरे दिन ही नहीं, जनरली टाइम फ्रेम तो अवॉइड करना नहीं है, टाइम फ्रेम तो ऐसा खास नहीं है, लेकिन ये कि आप जितनी खिड़कियों को बंद रखेंगे, उसके अंदर नेट मौजूद होगा। थोड़ा मगरिब के बाद जो है घर पे रहने की जो है वो कोशिश करें, खिड़कियों को बंद रखें, फुल स्लीव्स पहने, ठीक है। इसके अलावा आपके डिफरेंट जो है वो इंसेक्टिसाइडल एजेंट्स मौजूद होते हैं, वो स्प्रे करके रखें आप, डीडीटी की फॉर्म के अंदर होते हैं जो स्टेगनेंट वाटर में। तो इस तरह आप मच्छरों के इन अंडों को पनपने नहीं देंगे, परवरिश नहीं पाने देंगे, तो आप जो है वो बच सकते हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन ले लीजिए जी। एक क्वेश्चन ये आया है कि डेंगू जो है वो क्या ऐसा है कि उसका जो वो जो मल्टीप्लाई करता है वो क्लीन वाटर में ज्यादा तेजी से डिवाइड करता है, रिप्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू डर्टी वाटर, ऐसा कुछ है? मरियम, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं जो कि इस बात को की तरफ इशारा करते हैं कि यकीनन इनकी ब्रीडिंग सोर्स जो है वो थोड़ा सा साफ पानी की तरफ ज्यादा मिलती है। लेकिन मैं एक थोड़ी सी फनी सी बात है, इस तरह के क्वेश्चंस बच्चे क्लास में भी हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि सर हम कैसे पहचाने उस मच्छर को, कॉमन लोगों की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल तो खैर हमारा सब्जेक्ट है, उसको पहचानना जरूरी है। तो मैं कहता हूँ कि देखिए आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, मच्छर जो है वो एनोफिलीज भी हो सकता है, एडीज इजिप्टियाई भी हो सकता है, आपको बचना है किसी भी तरीके से नेटिंग, कॉइलिंग वगैरह की थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि कुछ लोग एस्थमेटिक होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो कॉइल वगैरह जब घरों में बंद किया जाता है या जलाया जाता है तो उससे काफी लोगों को सांस की तकलीफ जो हो सकती हैं। इसलिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक किस्म के मैट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपने मैट को लगाया और आपने स्विच के साथ अटैच किया तो उसकी इंसेक्टिसिडल वेपराइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो पूरी स्प्रेड होती है, मच्छर से बचा के रखती है। एक सवाल जो मुझे भी नजर आया था स्क्रीन के ऊपर कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है, मैं तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूं, यकीनन फार्मासिस्ट का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। अगर ये फार्मासिस्ट ना होते तो यकीनन ये दवाएं वगैरह जो आज हम प्रिस्क्राइब वगैरह कर रहे होते हैं, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो मौजूद होती, वो चल नहीं रही होती। इन्फेक्शन जब भी होता है एंटीबायोटिक्स के बनाने में, मेडिसिन के बनाने वगैरह में और प्रिस्क्रिप्शन वगैरह के लिए फार्मासिस्ट का रोल बड़ा अहम है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और कोई इसके क्वेश्चन है अलावा क्या जी? जी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो हम लोग वो कोशिश करेंगे कि एंड में लें, क्योंकि जी एंड में जी हम लोग जी प्रिकॉशंस की एंड प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करेंगे। बिल्कुल। तो इसी आपने तरह के ये प्रिकॉशंस जी मरियम हमें डेंगू की सूरत में भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। जी और क्या नाम है, और हेपेटाइटिस सी का मरियम पूछा है किसी ने। एक चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है, वो ये है कि अब हम लोग जो हैं ये बात समझ लेनी है हमें कि पेंडेमिक इन्फेक्शंस का दौर शुरू हो चुका है, इंपोर्ट ऑफ इन्फेक्शंस का दौर शुरू हो चुका है। क्या हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें कि जनाब डेंगू था, तो वो कहते हैं डेंगू तो हमने सुना ही नहीं था उस जमाने में। ये तो फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स आपको डेंगू का एक खास प्रेवलेंस जो है वो मिल रहा होता है। और ये कहा जाता है कि थाईलैंड वगैरह से कुछ टायर्स इंपोर्ट किए गए थे उस जमाने में 30 साल पहले और कबल, और वहां उनके उसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था और उसमें ये अंडे मौजूद थे। जैसे ही ये ट्रांसपोर्ट हुए और इंपोर्ट किए गए तो वहां से इन मच्छरों अंडों ने पनपना शुरू किया, ये मच्छर बन गए, पूरी लार्वल साइकिल जिस तरह के हम जानते हैं मच्छर की होती है, और फिर ये फैलना जो है वो शुरू हो गए। कॉन्गो को आप देख लीजिए, वंस इट वाज कंसिडर्ड टू बी अफ्रीकन इन्फेक्शन, नहीं समझा जाता था। निगलेरिया को देख लीजिए आप, निगलेरिया फोलरी जो है, ये शुक्र है कि इस दफा इतने केसेस निगलेरिया फोलरी के सामने नहीं आए हैं। ये स्विमिंग पूल के पानी से वैसे ज्यादा फैलता है निगलेरिया फोलरी जो पैरासाइट है, जो गौता कर लगाते हैं या वुजू वगैरह के वक्त में, क्योंकि नाक के जरिए ये पैरासाइट जो है वो दिमाग में चले जाता है। इस साल अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में इसके इतने प्रोमिनेंट केसेस जो हैं वो नहीं देखे गए हैं। डायरियल इन्फेक्शन की एक लंबी मरियम कैटेगरी है, जीआईटी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की एक लंबी कैटेगरी है, जिसके अंदर हम लोग उर्दू आम जबान में बात करें तो पेचिश, दस्त की बीमारियां वगैरह जो हैं वो शामिल हैं। और हम इसे कैटेगराइज करें तो ये फूड बॉर्न इलनेसेस की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें मैं खास तौर पे जोर देना चाहूंगा डायसेंट्री, जो कि शिगेला डायसेंट्री के जरिए जो है वो फैलता है। तो ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल। कॉलरा पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, हैजा है हमारे पास, कॉलरा है,
दूसरी बीमारियां हैं, डायरियल इन्फेक्शन है, सोर्स क्या है, कंटेमिनेटेड फूड है। क्योंकि ये खुद ब खुद एक इंसान का एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब भी बारिशें होती हैं तो हमारा ये कुछ रोगनी चीजों की तरफ जो है वो रुझान बढ़ जाता है, तली हुई चीजों की तरफ थोड़ा सा रुझान बढ़ जाता है, दिल थोड़ा ललचाता है कि इंसान पकोड़े समोसों की तरफ जो है वो खुद ब खुद दिल जो है वो चाह रहा होता है। फिर हमारी यहाँ की पॉपुलेशन की जो कसूर है वो ये होता है, मैं हमेशा ही कहता हूँ बड़ी मोहब्बत से, बहुत प्यार से, वो ये होता है कसूर कि जनाब आप खाएं, जरूर खाएं, आपको रोका नहीं किया, क्यों ना हम इसे घर में बना लें, ये ज्यादा बेहतर है। बाहर के पकवान वगैरह में क्योंकि हमें उस पर्सन की हाइजीन का हमें नहीं मालूम होता कि उसकी हाइजीन क्या है, इसके अलावा डिफरेंट उसके जो बर्तन वगैरह हैं वो किस तरीके के हैं, क्या वो प्रॉपरली वॉश्ड हैं या नहीं है। तो आपकी पर्सनल हाइजीन आप किसी बंदे की नहीं हमें इतनी ज्यादा पता, हम उससे खाना लेकर आए, घर में खाएं, तो ये इन्फेक्शन को फैलाने का एक बहुत बड़ा जो है वो जरिया बनता है। फिर डिपेंड किसके ऊपर होना पड़ता है जी, टाइफॉइड इन्फेक्शन भी एक किसी ने सवाल पूछा है, बिल्कुल टाइफॉइड इन्फेक्शन भी मूनसून के बाद बहुत ज्यादा फैलता है, और वजह वही गंदा पानी और गंदा खाने की सोर्स जो है, जो कि हम बाहर से खा रहे होते हैं। पानी को घर में भी बॉयल करके जो है वो हमें पीना चाहिए। एंड अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स वी हैव डन इट, जिसके अंदर हमने ये चेक किया कि अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, मिनरल वाटर का भी स्टेटस बहुत अच्छा हमें नहीं मिला। जब भी हमने पानी की टेस्टिंग की तो मिनरल वाटर का स्टेटस भी बहुत अच्छा नहीं मिला, इसके अंदर भी जरासीम जो हैं वो पाए गए हैं। आई मीन और मैं इस तरफ ये जोर देना चाहता हूँ उन खवातीन को जो घर में मौजूद हैं कि पानी को बॉयल करके पीने की आदत जो है वो डालिए। यकीनन वर्ड फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स, बट आई स्टिल बिलीव, अच्छे तो अटेंडेंस, आई स्टिल बिलीव कि गो फॉर दी बॉइलिंग, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन का हमें बाहर इतना ज्यादा जो है वो अंदाजा नहीं है। जी जी, अच्छा, इकोलाई के तो हवाले से एक सवाल यहाँ पर पूछ रहे हैं जी, मैं बिल्कुल बताता चले जाऊं कि इकोलाई की बहुत सारी स्ट्रेन्स हैं, एंटीरियोपैथोजेनिक इकोलाई, एंटीरियो हेमरेजिक इकोलाई, और बहुत सारे जो हैं वो ट्रैवलर्स डायरिया वगैरह कॉज करते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं वो हम क्लिनिकल सिम्टम्स और डायग्नोसिस की बेस के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर रहे होते हैं। कॉन्गो का किसी ने बीच में पूछा था, तो कॉन्गो का डेफिनेटली थोड़ा सा खुद ब खुद कम हो जाएगा, बकरा ईद के बाद ये कम होता चले गया, क्योंकि जानवरों की एक सोर्स जरा कम हो गई, क्योंकि कॉन्गो का मेन रिजर्वायर जो है वो ये इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, जो कि इस वायरस को जो है वो रखते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल, ये फातिमा अब्दुल मजीद साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अमीबिक डाइसेंट्री प्रोटोजोअल इन्फेक्शन आपका कहलाएगा, ठीक है, जिसमें स्टूल सैंपल आप ले रहे हैं और आप सिस्ट और ट्रोफोजोइड जो उसके स्टेजेस होते हैं प्रोटोजोआ के, उसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। यानी दो टाइप की डाइसेंट्री हो गई है, एक अमीबिक डाइसेंट्री के भी चांसेस होते हैं, बैसिलरी डाइसेंट्री के भी चांसेस होते हैं। बैसिलरी डाइसेंट्री के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जो कि शिगेला डिसेंट्री के जरिए हो रहा है, इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लेकिन अमीबिक डाइसेंट्री के भी चांसेस होते हैं मानसून के बाद, लेकिन थोड़ा सा रेशियो जो है वो कम है। हेपेटाइटिस बी पूछ रहे हैं यहाँ पर बेटा, हेपेटाइटिस ए जो है उस पर हमारा भी फोकस है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए पानी के जरिए जो है वो फैल रहा है, हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो ब्लड के जरिए फैलते हैं। क्योंकि टॉपिक मानसून से रिलेटेड है तो हेपेटाइटिस ए पे हमारा ज्यादा जोर है। और ना सिर्फ ये मरियम, बल्कि वो तमाम, हम मरियम ऑफिसेस में भी सेफ नहीं है। We are not safe in our offices. We are not safe in our schools. We are not safe in our hospitals. अब ये मतलब पानी की सोर्स क्या है? Whether the water has enough chlorine or not. This is really so important. The chlorine, which is ideally should be present in the form of ppm,
is it there in our tap or not? The big question is that, और वो of course जो है वो नहीं हो रही होती। यही वजह है कि तो ये हम क्यों गवर्नमेंट की आप ये देखिए ना, हम क्यों रिलाई करते जा रहे हैं फिल्टर वाटर पे। यानी मैंने हर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के अंदर देखा कि वो पानी की बोतल के ऊपर डिपेंडेंट है, फिल्टर वाटर के ऊपर। बहुत खुश होके कहते हैं हमारे यहाँ। जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि हम डे बाय डे जो है वो रिलाई करते जा रहे हैं इस बाहर के पानी के ऊपर, और ये पानी भी रिलायबल जो है वो नहीं है। तो बेटर कि आप घर का भले पानी पिए, लेकिन उबाल के कम से कम जो है वो इस पानी को पीने की आदत डालिए। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो है वो ये स्किन डिजीजेस पे भी जी जी आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी, स्किन डिजीजेस, बहुत अच्छा आपने बात की। जी अरूबा फातिमा, मैं स्किन डिजीजेस के ऊपर भी जरूर मेरा था फोकस कि मैं बात जो है वो करूं। स्किन देखें, बारिश के पानी में क्या है कि आप जानते हैं कि हमें नहीं पता कि जिस पानी के अंदर हम खड़े हुए हैं उस वक्त, उसके अंदर कौन से जरासीम जो हैं वो मौजूद हैं। यूजली देखा ये गया है कि बहुत सारे इचिंग और रैशेस और बहुत सारे जो हैं वो फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो आफ्टर मूनसून ये हमें बहुत ज्यादा देखने में आते हैं। खास तौर पे वो बच्चे जो बारिश के पानी के अंदर जो है वो खेल रहे होते हैं, और जो है वो कैंडिडा एल्बिकेंस के इस तरह के बहुत सारे फर्स्ट जनरेटिंग इन्फेक्शंस जो हैं वो मतलब देखने में आए हैं। जहां अगर ये कट्स हैं आपके जिस्म के अंदर या फीट के अंदर कट्स हैं, तो ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो आमतौर पे देखने में आते हैं। कुछ साउंड सब बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है मुझे। जी आप लोग सुन सकते हैं मुझे? जी आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है। तो जो है वो ऐसा भी होता है कि मॉनसून के बाद इन्फेक्शियस स्किन के जो डिजीजेस होते हैं उसका भी स्प्रेड बढ़ जाता है। जी बिल्कुल बढ़ सकता है। सही सही। और जेनेटिक्स के हवाले से भी काफ़ी सारे सवालात आ रहे थे कि जैसे पहले किसी ने डेंगू में जेनेटिक्स के बारे में कहा था कि हाउ कैन वी कंट्रोल डेंगू बाय यूजिंग जेनेटिक मटेरियल। और अभी एक और क्वेश्चन ये भी आया है कि बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह से हम लोग इन्फेक्शियस डिजीजेस को और पैथोजेंस जो उसे कॉज कर रहे हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को यूज करके उनको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी का तो बहुत प्रोमिनेंट रोल है, वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत प्रोमिनेंट रोल है। हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान के, दे हैव बीन ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। जैसे डॉ यूनिवर्सिटी का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, और दूसरे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज के, पंजाब साइड के। दे ऑल आर प्लेइंग देयर रोल, क्योंकि मतलब देखें ना कि आप वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हमें चाहे वो किसी भी इंफेक्शियस डिजीजेस की वैक्सीन हो या कोविड की जो वैक्सीन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया में बायोटेक्नोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्योंकि आजकल जो प्रॉब्लम्स हो गए हैं मरियम, वो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं। वन पर्सन कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ड्रग डिजाइनिंग के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रोल है बायोटेक्नोलॉजिस्ट का, केमिस्ट का, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। सो दे ऑल आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। Okay. फ्यूचर We have, पर्सपेक्टिव ऑफ yeah. इन्फेक्शियस डिजीजेस। देखें, जब तक भी कोई एक बंदा इन्फेक्टेड है, वी आर एट वी विल हैव इन अ डेंजर जोन। कोविड के केस में भी मैं यही कहता हूं, अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। इफ अ सिंगल पर्सन कैरीज अ वायरस, you know, he or she may be a potential source of transmitting it. If he coughs, if he sneezes, the droplets are generated, the person may catch the infection. Right. और जी यही हम लोग सॉइल ने बॉर्न भी होते हैं, ये पूछ रहे हैं, सॉइल बॉर्न भी हैं। पानी की कोई सोर्स ऐड हो जाती है, कराची शहर की अगर बात करें तो मरियम आप देखें कि बहुत ज्यादा हम शिकायत करते हैं कि बारिशों के बाद पानी की पीने की लाइन और सीवरेज की लाइन जुड़ जाती है बाज़ औक़ात। तो हमारे सीवरेज के अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं,
इकोलाई एक पोटेंशियल सोर्स है। इकोलाई के बारे में हमेशा ही मैं कहता हूँ बच्चों को, जिसके मुख्तलिफ मैंने स्ट्रेन अभी बताई, कि इकोलाई इज अवर फ्रेंड, इकोलाई इज अवर एनिमी, बिकॉज इट्स अ opportunistic organism, so it may cause a very serious infection। जब भी हमारी पैथोफिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है, it is a source of the traveler's diarrhea, it is a source of other infection, it's a source of UTI and other। तो पानी में बहुत सारे आपकी ये सीवरेज लाइन का जुड़ जाना, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पिट्स हैं और होल्स हैं, गटर लाइंस हैं जो उबल के बाहर आई हैं, तो उनके अंदर आप सोचिए ना कि कितने जरासीम होंगे, कितना फुजला होगा, कितना वेस्ट मटेरियल होगा, and the waste material harbor a huge amount of these pathogenic microorganisms which can cause serious diarrheal infection in the human body. Right. Okay, we have another question that's asking that is there any infection which spreads through sweat? Can sweat be a source of infections? हाँ, मतलब स्वेट देखिए ना, इचिंग करेगा स्वेट, और स्वेट आपके स्वेट के अंदर वैसे नेचुरली तो आप ये देखें कि हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंसेस एंटी माइक्रोबियल मौजूद होते हैं जो कि बचा रहे होते हैं इन्फेक्शन से हमें, इट्स अ पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी वन। लेकिन अगर आपको कुछ कट्स हैं, कुछ रैशेस हैं, कोई रिएक्शन अगर बॉडी में और उस वक्त आपको स्वेट होता है, तो उस वक्त आप देखें आप चेहरे को भी अपना बहुत ज्यादा इची फील कर रहे होते हैं, तो इट कैन, और जब आप बहुत ज्यादा इची फील करते हैं तो हम बहुत ज्यादा स्क्रैच कर लेते हैं अपने नेल्स, और उनके जरिए वो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, सेप्सिस की तरफ भी हम लोग जा सकते हैं। तो वन शुड बी केयरफुल अबाउट द स्किन इन्फेक्शंस। अच्छा, एक पाँव और वगैरह भी हैं, अगर आप बारिश वगैरह से आए तो बहुत अच्छे तरीके से वाइप कीजिए। क्या होता है कि पाँव के जो इंटर डिजिटल स्पेसेस होते हैं उंगलियों के दरमियान, इसमें पानी जो है वो रह जाता है, ठीक है, और फिर फंगल इन्फेक्शन और ये ग्रोथ जो है वो होने लग जाती है। इसके अलावा मरियम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन देना चाहूंगा कि डायबिटिक लोग और वो तमाम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, we use the term immunocompromised, a very important term, कि वो तमाम लोग जो immunocompromised हैं, they are more prone to catch infections very easily. Not only to catch infections, rather if infection establishes in the body, it will take time to heal up, ठीक है। और फिर अगेन उन्हें तमाम वो मेडिकेशंस पे रहना है, और फिर मेडिकेशंस के अपने साइड इफेक्ट्स, एंटीबायोटिक्स के अपने साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये लफ्ज ही क्या है, जैसे हम उर्दू में कह रहे हैं एहतियाती तदाबीर, हम इख्तियार कर लें तो हम बच सकते हैं। कितनी देर लगती है हाथों को क्या प्रोन भी, मैंने समझा नहीं उनके सवाल। Dua Uruj, please rephrase your question so that it becomes a bit understandable. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये अच्छा और वो है कि ये आपकी ऑडियंस काफी इंटरेक्टिव है। जी बिल्कुल ऑडियंस इंटरेक्टिव है, तभी हमें मजा आ रहा है। They keep on asking questions. And we love these questions, please keep them coming. अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। इट्स अबाउट कि डायरिया जो है वो ई कोलाई भी कर सकता है, O15787 स्ट्रेन, और शिगेला भी करवा सकता है। तो इसका जो है वो एक बंदे ने पूछा है कि जो है दोनों डिफरेंट है, तो इन दोनों के दरमियान कोई टेस्ट करवाना चाहिए क्या, कि डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि एंटी-हेमोरेजिक डायरिया जो है वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से वर्सन होता है, तो क्या इन दोनों को डिफरेंशिएट करना चाहिए? बिल्कुल डिफरेंशिएट के लिए आपके टेस्ट मौजूद हैं। आप इन दोनों का जो है वो टेस्ट जब करवाएंगे, क्या नाम है, तो आपको बिल्कुल क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाएगा। और आफ्टर डिफरेंशिएशन, सवालों का बहुत अच्छा है, क्योंकि आफ्टर डिफरेंशिएशन ही एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स फर्दर वर्सन द सिचुएशन ऑफ डायरिया। हाँ, because that person is saying कि उन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा होता नहीं देखा है, बोला जिसको भी डायरिया होता है डॉक्टर्स या तो मेट्रोनिडाजोल प्रिस्क्राइब कर देते हैं या नोविडेट कर देते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ये सवाल कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है ना कि वी डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द इन्फेक्शन, ठीक है ना। हम तो देखिए ना, मैं इसको यूं समझाता हूँ मरियम, हमारे टाइम है मेरे ख्याल में, तो मैं हमेशा इसको यूं समझाता हूँ कि पेशेंट को डिस्क्राइब नहीं करना आता, वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, जनाब पेट में दर्द है, पेट में मरोड़ है, मुझे दस्त हैं। अब हम हैं कि
इसको ब्रॉड टर्म में कह रहे हैं कि इट इज GIT ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। प्रोटोजोल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, डायसेंट्री। अब जो हमने बातें की आपसे, वो हमने उस प्रेवलेंस को देखते हुए बात की है कि मानसून के बाद क्या ज्यादा नोट किया जाता है। Are you getting my point? Diarrheal infection मानसून के बाद क्या ज्यादा जो है वो नोट किए जाते हैं जी। और यूजली अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स भी खैर हमारी उसमें हैं उसमें, लेकिन डायरेक्टली फ्लैजिल जो है वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एंड फ्लैजिल इज गेटिंग रेजिस्टेंट डे बाय डे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक अलग इशू है बिल्कुल। डेंटिस्ट जो है वो फ्लैजिल दे रहा है डेंटल एक्सट्रैक्शन में, हेलिकोबैक्टर पायलोरी के रेजीम के अंदर मौजूद है फ्लैजिल, डायरियल इन्फेक्शन में दिए जा रहे हैं। सो अवर बग्स, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कि इफ वी आर स्मार्ट इनफ टू डिजाइन अ ड्रग, दीज माइक्रोब्स are more smarter to fight against these infections. They have the tools to fight against these infections. Penicillin was once considered to be a miracle drug during the Second World War. It was prescribed for every purpose at that time. But now, what is the fate of the penicillin? It is good for nothing at all. The reason is the injudicious or insensible constant prescription in all infections by all of us. I mean, we all are responsible. Definitely. And Mariam, antibiotic, yes. one more thing I would add, that the whole world is turning to, शायद ये हम सबका बड़ा फेवरेट पॉइंट होगा, ये तमाम होम्योपैथ्स का भी फेवरेट पॉइंट होगा, मेरा भी बहुत फेवरेट पॉइंट हम सबका भी है, and the whole world is turning towards the folk medicine, the herbal medicine, the plant-based origin medicine, because the chemically synthesized drugs are getting resistant. And would you believe that a single antibiotic will take 30 years of constant research in the pharmaceutical industry to launch into the market? Will you wait for further 30 years for a certain infection? Or why not we disclose, and why don't we unveil? Okay, why don't we unveil the hidden potential of the plants and the herbs around? And this is what big institutions are doing. This is what HEJ is doing, which is what Panchwani is doing, and this is what my area is also doing. I love to work on green tea and other, plants and other sources. So you suggest कि ज़्यादा किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. I love to, yeah, but the point I'm going to stress it. अच्छा निता का सवाल लेते हैं. The point I'm going to stress it, research based, Mariam. If I'm going to prescribe something, you have a right to ask me that, have you done research on it or not? Trial in this way. And you, I'm not going to, experiment anything on you. We should have enough research material about it, before having, because I found many people who say that, like in case of corona, Mariam, it has spread. Perhaps garlic has a potential to cure. Perhaps other things have a potential to cure. My question is, have we got any research paper regarding it? The answer is no. This infection has least resistance. Can we use rainwater if we save it? Yes. But the question is, where are you going to save it? Do you have a sterile containers to save it or not? अच्छा, तो समंदर ये बारिशों का पानी तो सेव होता है, फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी और पानी सप्लाई वगैरह के लिए बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ह्यूज उस पे बेहजाद कुछ पूछ रहे थे, मिस आउट हो गया. अच्छा, एक और भी क्वेश्चन है कि क्या फिर हर्बल मेडिसिन के अगेंस्ट इन्फेक्शंस की रेजिस्टेंस हो सकती है? जी बेटा, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इट विल टेक टाइम. ओके. पेनिसिलिन का फेट तुमने 70 साल बाद देखा, तो एक हर्बल का भी गलत फेट आप 70 इयर्स बाद देखोगे. सही. तो उसमें भी यही आपने जैसी बात की कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिसर्च के अगेंस्ट के साथ चलेंगे, प्रोटोकॉल्स के साथ चलेंगे,
तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब इधर भी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हुई है वो इसलिए हुई है ना कि यहाँ पे ऐसे ही लोग प्रिस्क्राइब कर देते हैं और ऐसे ही लोग ले लेते हैं बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के भी एट टाइम्स ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुकी है। एक बहुत अच्छा सवाल आया था कि नैनो पार्टिकल्स को हम लोग, बेटा नैनो पार्टिकल्स का ये है कि पोटेंशियल तो मालूम होता जा रहा है, डिफरेंट तरीके से सिंथेसाइज किए जा रहे हैं नैनो पार्टिकल्स डिफरेंट तरीके से सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, नेचुरली ओरिजिन भी सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, वो नेचुरली भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर थोड़ी फर्दर रिसर्च चाहिए कि साइट ऑफ इन्फेक्शन पे किस कॉन्सेंट्रेशन में आपका मॉलिक्यूल पहुंचेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये इसको मैं यूं समझा रहा होता हूं कि कोई भी जो दवा है वो अपनी 3 टाइम्स MIC के बाद जो है वो प्रिस्क्राइब होके मार्केट के अंदर आ रही होती है, 3 फोल्ड्स हायर। क्यों? क्योंकि जब आप दवा खाते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं चली जाती, वो आपके टिश्यूज से बाइंड हो रही है, वो मेटाबोलाइज हो रही है, एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म और सारी चीजों के बाद, प्रोसेस के बाद वो साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर पहुंच रही है। तो हमें बहुत सारे, और इस मकसद के लिए हम डायरेक्ट, जो बिगनर्स हैं उनको बता रहा हूं, वैसे प्रोफेशनल्स तो जानते हैं, हम डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स ट्रायल नहीं कर सकते। इसके लिए हम पहले एनिमल्स के ऊपर ट्रायल देखते हैं कि ड्रग को। सही है। अच्छा, सिंस यू हैव अ वेरी रिच इन्फेक्शियस डिजीजेस के हवाले से रिसर्च में क्या पोटेंशियल है, किन किन और फील्ड्स में रिसर्च की जा सकती है विद रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शियस डिजीजेस? जी हाँ, आपके सवाल से पहले किसी ने दोबारा पूछा कि जी हाँ, अगर नैनो पार्टिकल साइट डायरेक्टेड एक्शन के डिजाइन हुए हुए हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क वेरी गुड इन फ्यूचर एज अ थेरेप्यूटिक एजेंट्स। द क्वेश्चन बस जो लैकिंग नजर आ रही है, जो ये सवाल पूछ रहा है, वो ये नजर आ रही होती है कि हमारे पास एकेडेमिया इंडस्ट्रियल लिंकेज बहुत मौजूद है। Our scientists have great potential to design drugs, to do great experiments on the benchtop, but unfortunately, कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल लिंकेज ऐसा नहीं है जो फंड करके उसे मेगा स्केल के ऊपर लेकर आ रहा हो। मरियम, सॉरी, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि ऑडियंस ने, किसी ने पूछा था कि रिसर्च में क्या पोटेंशियल, इन्फेक्शियस डिजीजेस में कहाँ कहाँ रिसर्च का आगे स्कोप है, किन किन चीजों पे रिसर्च हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू इन्फेक्शियस डिजीज? Lot of potential in research. Diagnostics, we really need the diagnostic kits. हमें diagnostic kits की जरूरत है। कोविड में हम लोग क्या शुरू के दिनों में कह रहे थे ना, भाई टेस्टिंग कम है, टेस्टिंग कम है। क्यों टेस्टिंग कम है? हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, बड़ी महंगी पड़ रही है, टेस्ट बहुत महंगा पड़ेगा, उन्होंने भी अभी डिजाइन नहीं किया हुआ था बाहर। हमने टेस्टिंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जब बहुत सारी कंपनीज लॉन्च कर देंगी, एक कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, लेस कॉम्पिटिटिव आप जो है वो टेस्ट को प्रेफर करने लग जाएंगे, उनकी किट्स को जो है वो लेने लग जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव किट्स को लेने लग जाएंगे। सो वन ऑफ द पोटेंशियल इज टू डेवलप डायग्नोस्टिक किट्स फॉर द राइट टेस्ट, either immunological, either molecular test for the infectious diseases. फिर कंट्रोल में आपको काम करना है, जैसे मैंने आपको बताया, और ये मेरा एरिया भी है कि इन्फेक्शियस डिजीजेस और कंट्रोल। और फ्रॉम मेनी इयर्स मेरा थेरेप्यूटिक कंट्रोल जो है वो बाय नेचुरल चीजें ही हो रहा होता है। वो तमाम हर्ब्स, वो तमाम स्पाइसीज, किचन हर्ब्स, द प्लांट्स, स्पेशली इंडिजिनस प्लांट्स पे काम करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मरियम, और उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है कि पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस वैरायटी का प्लांट जो यहाँ पे मौजूद है, कितने फोक प्लांट्स हैं। अगर हम जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, डीपर एरियाज में, वहां खवातीन कोई ना कोई उस पौधे को इस्तेमाल कर रही होती हैं जो उन्हें मालूम पड़ जाता है कि ये पौधा बड़ा करामत है। लेकिन क्योंकि बीइंग अ साइंटिस्ट हमारी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस वक्त उसका प्रचार कर रहे होते हैं या उस पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं जब हम उसे थेराप्यूटिकली प्रूव कर चुके होते हैं अपनी लैब के अंदर। से पहले नहीं कर सकते। सही। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है, यस मुल्तानी मिट्टी अच्छी है, बट क्वेश्चन इज डू वी हैव अ रिसर्च पेपर ऑन दिस मुल्तानी मिट्टी फॉर कॉस्मेटिक पर्पस? ये इंपॉर्टेंट है। मिसवाक का जब इतने सारे रिसर्च पेपर आ गए
मतलब बीइंग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू तो डेफिनेटली जब 1400 साल पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो यकीनन उसका पोटेंशियल है, लेकिन अब साइंस ये प्रूव कर रही है, साइंस ये प्रूव कर रही है। और लेशमेनिया की बात कर रहे हैं, लेशमेनियासिस नॉर्दर्न एरिया के अंदर बहुत ज्यादा है बेटा, और बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है, और बहुत डिसफिगरिंग डिजीज है, बहुत चेहरा बिगाड़ देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा होता है। और इसके ऊपर भी मतलब मुख्तलिफ किस्म के थेरेप्यूटिक पोटेंशियल रखने वाले एजेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और रिसर्च भी हो रही है, और ये जो है वो एक मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबल है। A lot of infectious diseases need to be explored. बहुत सारी infectious diseases को जो है वो explore करने की जरूरत है। Hospital acquired infection आपके पास बहुत सारे हैं। सही। So to summarize, डिजीजेस में रिसर्च का जी और बहुत सारी चीजें जो हमें पता है, जैसे कि जो हर्बल मेडिसिन वगैरह, उन पे हमें इन्वेस्ट करने की, फंड्स लगाने की, और उस पे मजीद रिसर्च के थ्रू बिल्कुल, इस पे जो प्रोजेक्ट्स प्रोटोकॉल लिखी है उसके थ्रू जी प्रूव करने की बहुत माशाल्लाह, जरूरत बहुत है, ताकि साइंटिस्ट उससे हैं। मैंने अभी आपकी ऑडियंस देख रहा था, बहुत जबरदस्त ऑडियंस है भाई। ये आपके यूएचओ ने तो बहुत कारनामा कर दिया, और फर्स्ट प्रोग्राम में ही यू केटर्ड ऑडियंस। जेब वगैरह, आपकी मेहनत, मरियम की मेहनत बहुत ज्यादा, और कितना डाइवर्सिटी की आपने ऑडियंस को चुन लिया इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर, और इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एंड आई रियली इम्प्रेस्ड बाय यू एंड डॉक्टर जेब कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन टच रहे, एक एक चीज बताते रहे कि जनाब अब ये हम क्वेश्चंस हैं, अब ये चीजें हैं, ये इस तरह आप जैसे यंगस्टर्स की बहुत जरूरत है, मैं समझता हूँ। कैन कोरोना स्प्रेड बाय फूड? No, corona cannot be spread by food. It can be caused by the droplets which are generated by your mouth, either by talking or sneezing and coughing, उसके जरिए। जी आप समरी कर सकती हैं। Sorry, thank you, sir, so much. With that said, it's 8:57, and I feel that we should wrap up the session now. But I'm sure कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, and I'm really sorry अगर मैंने किसी के questions miss कर दिए हो, या सर ने किसी के questions miss कर दिए हो, but मुझे खुद को बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है इसमें। infectious diseases के बारे में पता चला किस तरह से जो चीजें हैं वो पॉसिबल कैरियर्स हो सकती हैं, और खास तौर पे मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा रिसर्च की तरफ भी बढ़ गया, क्योंकि मुझे ये पता चला कि कितनी सारे रिसर्च के एरियाज हैं जिन्हें हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट यूएचओ बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें एक बहुत ज्यादा हमें वैरायटी दिखी क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में इतनी वैरायटी इसीलिए दिखी क्योंकि हमारे पास इतनी डाइवर्स ऑडियंस थी, हर बैकग्राउंड से ऑडियंस थी, तो हर कोई अपनी फील्ड के मुतालिक कोई ना कोई सवाल कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि होम्यो वाला कोई क्वेश्चन कर रहा है तो इससे दूसरों को कुछ नहीं सीखने को मिल रहा है। ये सब कुछ, मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जो कि सब कुछ बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड होता है, तो अगर कोई भी किसी अपनी फील्ड से मुतालिक भी कोई क्वेश्चन कर रहा है तो इससे आपको अपनी फील्ड में भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ यूएचओ इज, हम सबका एक to gain as much knowledge as possible and to take advantage of any opportunity that comes in our way. इसीलिए हम लोग इतनी बारिशों और सारे मसलों के बावजूद we are all here because this shows that how dedicated and committed we are to our cause. In the end, I would specifically like to thank you, sir, Professor Sikandar Shehbani, कि आपने अपना टाइम दिया।